हेलो, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द Pavilion। मैं हूं फखर-ए-आलम और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड द ARY Zap ऐप। Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 and what a journey it has been, just simply fantastic and a memorable one like always. And we're almost there. One more day to go and we should be done and dusted with this World Cup and hopefully go away with a lot of good memories amongst us. With me in the Pavilion, I've got four outstanding gentlemen, four friends, four people that I've shared this space with and really thoroughly enjoyed my time with them. Four former captains of Pakistan. First up, I've got the young, dynamic, one of the finest fielders in the game of cricket, a great player of spin bowling and captain Pakistan, Shoaib Malik. Good evening, assalamu alaikum and welcome, Shoaib. Good evening, wa alaikum salam, assalamu alaikum everyone. When the Pakistani batting order was in disorder, this man would stand alone to bring some kind of order. And one of the most successful test captains in Pakistan's test cricket history, I've got Misbah. Good evening, assalamu alaikum and welcome, Misbah. Good evening, wa alaikum assalam, assalamu alaikum to everyone. Two straight thumbs and 8 crooked fingers. The silver fox, जिनको कि हम कहते हैं चांदी की लोमड़ी है, मेरे साथ मौजूद है another great wicket keeper of Pakistan, kept the stumps, captain Pakistan, man of crisis, Moin Khan. Assalamu alaikum. Good evening. Moin, good to have you here again, like always. Thank you very much. Assalamu alaikum everyone. दोस्तों, पहले भी बोला था, अब दोबारा बोलता हूँ, मगरिब से लेके मशरिक तक, शुमाल से लेके जुनूब तक, जिस तरफ भी आप देखें, शायर पेविलियन का ही नाम है हर तरफ। क्योंकि चिट्टा टटू कोड़ी टपया टप चिट्टे टटुआ के बानी, हम सब के आपके हमारे प्यार मोहब्बत करने वाले एक खुश इंसान, द सुल्तान ऑफ स्विंग एंड द किंग ऑफ ऑल ऑलराउंडर्स, वसीम अकरम। गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वसीम। गुड इवनिंग। वेरी ब्रेव ऑफ यू फखर, जो आपने ये टंग ट्विस्टर पढ़ा है, उसमें कुछ भी हो सकता है। मसला यही है ना, कुछ भी हो सकता है। But you did it amazingly well, by the way. Very That's impressed. because I have a good teacher. Because I have a great teacher. The man who has taught everything. बात नहीं आ रहा। नहीं। Second last है ना आपको शो। बताया था ना, खीरा जान तो नहीं बुझता। अच्छा, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया इसका क्या मतलब होता है, बता भी दे जरा आप इसका क्या, इसकी पूरी डिटेल भी जरा बता दे। नहीं समझने वाला कि बंदा बाज नहीं आता है। जी, जी। कोई झाम बन वैसी तार इसका आती है मतलब हमारी है ज़बान कि होवे बांदर ते छाल ना मारे। बेसिकली बुनियादी तौर पे गल है कि Yeah. तो वे बांदर ते छाल ना मारे। ऐसे बीमार हो तो नहीं मारता। तू बीमार है क्या? So guys, let me ask a question. Tomorrow is the last day for the World Cup. Congratulations to India and Australia for reaching the finals. Yeah. बड़ी मेहनत करके, बड़े मैच जीत के, इंडिया तो आराम से ही आ गया, but Australia really worked hard. In general, congratulations to both the teams, both the nation. In the end, the top teams of this World Cup have qualified. So मेरा question है थोड़ा सा क्रिकेट से हटके, because कल हमने बात करनी है इस पे। कैसी रही जर्नी गाइस आपकी, one by one जरा? I'll start off with Misbah. How was the journey this year, Misbah? You have been हम इकट्ठे तीसरा साल हो गया हमें। ज़बरदस्त। मुझे लगता है हर साल बेहतर से बेहतर हो रहा है एक्सपीरियंस, और शो भी जिस तरह लोग देख रहे हैं। एक तो कंपनी जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि जब आप बैठते हैं इकट्ठे, उसको एंजॉय करना। और द वे फ़खर इज़ जस्ट कंटिन्यूइंग, आई थिंक हम सबको ऑन द टोज़ भी रखते हैं, फिर आप भी रखते हैं। तो ओवरऑल इट इज़ गुड एंड रियली इंजॉइंग। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब लोग आपको देखते हैं और फीडबैक देते हैं कि आप क्रिकेट के हवाले से भी और वैसे भी ऑन अ लाइटर साइड भी किसी चीज़ को देखना चाह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो देन इट मीन्स यू आर डूइंग वेल। अदरवाइज इट्स डिफ़िकल्ट एवरी डे। वो जिस तरह कह रहे हैं 45 दिन 40 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, हम लोग रोज़ आते हैं, रोज़ वही बातें, वही प्लेस पे डिस्कशंस, बट स्टिल अगर लोग इंगेज्ड हैं और वो उसको एंजॉय कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर डूइंग वेल। और हम लोग भी ज़ाहिर एंजॉय कर रहे हैं। जब भी हम ख़त्म करते हैं इतने लंबे उसके बाद, वी ऑलवेज मिस दैट। वो जो एक यहाँ पे हमारी एक इकट्ठे रहते हैं। आज वो उबैद हमारे जो हेड ऑफ प्रोडक्शन है, वो भी कह रहे थे कि कल से रौनक ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इट जस्ट फील्स लाइक यार जैसे ख़त्म होता है ना, तो पहले 2-3 दिन तो आप जो है ना, वो अजीब सा लगता है आपको जब आप ख़त्म करके जाते हैं कि है
आज कितने नहीं जाना you missed that company. Yeah. वही ना, आपका पहला सफर था। वंडरफुल या पहली दफ़ा नेशनली मैं आया हूँ, आप लोगों का तीसरा साल है मेरा ख्याल है। इट वाज वंडरफुल जर्नी एंड अनदर जर्नी विद इन द जर्नी जो वसीम भाई के साथ टाइम स्पेंड किया ना मैंने आते जाते डेली बेसिस के ऊपर जो जर्नी विद इन द जर्नी वो बहुत मजेदार रास्ते इन्होंने दिखाए हैं आपको। ऑलवेज इंस्पिरेशन वसीम भाई जिस दिन अकेला आया ना, जिस दिन अकेला आया है, किसी विंगे रास्ते में आया है, रैंडम रास्ता। बिकॉज़ आई नो कराची, आई एम अ कराची, 2 टायरों में आए हैं मुझे वो सब्जी मंडी से लेके आया, लिटरली 2 टायरों पे आया सी। मैं कहा यार तो कोई कमाल है ना, देखें मुझे 40 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, हर रोज़ आना है और रास्ते 3 ही हैं, लेकिन नया रास्ता हर रोज डिस्कवर करना ये भी कमाल है। नहीं, मैं अपना व्यू लयारी नदी का कैसे मिस कर सकता था। तो शेवी आपका बताइए, आपकी सेकंड ईयर का भी मेरा नहीं, बहुत मजा है, बहुत मजा है। नहीं और अभी आ रहा है होपफुली कल जो लास्ट डे है हमारा नेशनली लेट द बेस्ट टीम विन, अल्लाह करे। ये जिस तरह टूर्नामेंट गया है और हमारी जर्नी गई है वो सुपर, स्पेशली उनका भी शुक्रिया जरूर अदा करना चाहिए जो लोग बिहाइंड द सीन्स हैं। Oh, absolutely, no question about that. No question. Thank you. No question about that. हाँ, मेरे लिए वसीम भाई ऐसे नहीं लगा कि आई वॉज एवर अवे फ्रॉम द फैमिली। मेरे लिए फ़खर भाई, आप, मिसबा भाई, मोइन भाई, बहुत मज़ा आया। सेकंड ईयर है मेरा और सीखने को भी बहुत कुछ मिला, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा और ये है कि जो पूरी ARY की टीम है उन्होंने बहुत अच्छा लुक आफ्टर किया और थैंक यू। और जब बंदा सर्कल से बाहर निकलता है ना, जैसे पाकिस्तान में था तो मैं एक दिन के लिए आई ट्रैवल टू दुबई, तो फिर आइडिया होता है कि आप क्या कर रहे हो। बीच में वो सेम रूटीन चल रही होती है तो समझ नहीं आती है। हार्डली सोशलाइज। तो वो जब मैंने ट्रैवल किया तो वो ऐसे था कि जैसे आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम से खेल रहे हो एंड यू आर डूइंग वेल, so everyone comes to you, they praise you और they talk about your performances। तो ये शो भी it's nothing less as compared to your playing days। तो ये था कि it was a great journey, बहुत मज़ा आता है। बल्कि होटल के रूम में जब शो आता है या कोई ब्रेक अगर आ जाए ना तो ऐसे लगता है यार something is missing, something is very important missing, थोड़ा मूड भी ऑफ होता है। लेकिन जब भी मैं यहाँ आता हूँ बहुत मज़ा आता है। वंस अगेन थैंक यू एवरीवन एंड आई होप कि ये जो हमारी फैमिली है ये इसी तरह लंबा चले इंशाल्लाह और ARY ऑल्सो ग्रो करे। बिल्कुल सही, ए स्पोर्ट्स एब्सोल्युटली। साड़ी बारी पाइन मेरी बारी क्या है? मेरी तो बारी चलती रहेगी सारी। नो बट लुक, सो इट्स बीन जस्ट लाइक रिमार्केबल। और जब हमने पहली दफ़ा शुरू किया था, पहले साल जब हम यहाँ पर आए थे, हमें नहीं अंदाज़ा था, वसीम यू रिमेंबर यू नो दैट, हमें किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये हमें सफ़र यहाँ तक ले आएगा एंड दैट वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग समथिंग दैट will connect with people so hard. Yeah. And one of the best compliments that I think I have heard for our show is that हमें यूँ लगता है कि जैसे आप हमारे फैमिली के मेंबर हैं, आप हमारे घर के ड्राइंग रूम में या लाउंज में, टीवी लाउंज में आप आ रहे हैं, हमारे बड़ा कनेक्ट करते हैं आपके साथ। और एक और जो कमेंट मुझे मिली थी, वो कोई आई रिमेंबर कि खातून ने न्यूयॉर्क से उन्होंने हमें एक्स पे, ट्विटर पे भेजा मैसेज, उन्होंने कहा दिस इज़ द फ्रेंड्स वर्जन ऑफ स्पोर्ट्स शो। तो फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे कामयाब टेलीविजन शो या सिटकॉम कहते हैं। तो दैट हैज़ बिन, सो द केमिस्ट्री हैज़ बिन ग्रेट। And the reason why this chemistry is great, Wasim, I have to give you full credit for this. Why? Because one of the legend that you are, for you to open up your heart and to accept us as your equals, you've given us, हमें कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि anybody is less or more. We all come here as equals. When we are sitting at back there, we crack jokes, we make fun of each other, we all laugh about it. We have no insecurities and no nothing. That chemistry is very very unusual. वो अक्सर वो सारे पूछ रहे थे, सारे मीडिया वाले कि यार ये केमिस्ट्री कैसे, तो उसका राज जो है वो ये है कि आपने जो बुनियाद रखी है ना बीच में आकर, वो बुनियाद जो थी ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि हम सब जो हैं वो अपने
दायरे इखलाक से तजावुज़ करके गुफ्तगू कर सके यहाँ पर। अब इसका मतलब भी समझा दे। यानी कि जो हमारी लिमिट्स हैं इखलाक की, मीनिंग भी बिहेवियर की, हम उससे बाहर निकल के बदतमीजी कर सके। वैसे तो तुसी इखलाक ही रहंदे हो। Isn't he always miserable, Skip? Always. I mean, that's Misbah. Not That's miserable Misbah. is not the word. It's not the word. He's a different He's- person. ये बताएं, ये मैंने सच बोला है या झूठ? In better words. In better किसी ने words. तो बोलना है ना, या तो मैंने वैसे कहा, सच बोला है। Very good. Yeah, he did. सुने देखो, आप हर वक्त ऐसे ही रहते हैं, आपकी सानू हमेशा पता से है जेड़े तुसी- हर वक्त शिकायत रहती है, आपको ज़िंदगी से शिकायत है, और जो आपको सबसे ज़्यादा झेल रही हैं खातून, आज वो भी स्टूडियो के अंदर मौजूद है। मैं उनको गवाही के तौर पे लाना नहीं चाह रहा यहाँ पर, वरना वो उनको मिलना चाहिए मेडल और सीधा जन्नत में जगह मिलनी चाहिए। जो आदत बर्दाश्त मेरे ख्याल में मेडल भी जन्नत में ही मिल रहा है। मेडल भी जन्नत में मिलना चाहिए। दोनों की लड़ाई एक कॉमन चीज़ है जिस पे होती है, और दोस्ती भी उसी पे होती है, वो है रोटी। खाना। Yeah, बिल्कुल। And what मोइन भाई ए जेड़े मोरालिटी दे जेड़ा ना जुम्मे दे खुतबे देंदे ने देखो, मेरे तो बड़े सिंपल से खुद में है मोरालिटी के, बड़े सिंपल से देता हूँ। बी Yeah, काइंड you're टू not एवरीवन, complicated. बी नाइस टू एवरीबody, एंड यू नो बी नॉट लाइक यू। पिछले कमरे के लिए ये बातें ठीक है यहाँ हाँ, पे। यहाँ पे नहीं हो सकती। एंड वसीम, व्हाट अबाउट यू मैन? I had a great time. Look, I thought when we started, I knew it was a long road, 45 games, almost month and a half, and one day cricket, as we all know, मुकदी नहीं है। You know, 50 ओवर 100 ओवर ख़त्म होने को नहीं देते। And then, you know, in between पाकिस्तान के मैचेस में, double headers में, we were here all day, and first for 2-3 days were difficult for me personally. Travel, getting used to the you know, coming here. But once I got the hang of it, first 3-4 days, I really enjoyed my journey. So I want to thank everyone, you, and Misbah, and of course the people behind the scenes. There are about 50-60 of them. Every one of them made my life very comfortable, easy, most importantly, fun. और जो मोइन कहते हैं, enjoy. एंजॉय। एक चीज और ना, कुछ लोग मिलते हैं वो कहते हैं कि बहुत अच्छी केमिस्ट्री है आप लोगों की, तो आप लोग क्या कोई कंटेंट पहले उस पे काम करते हैं, क्या होता है? प्लीज क्लैरिफाई दिस आल्सो। Absolutely. There are no scripts here. There is no preparation whatsoever. सिर्फ एक वाई चीज करते हैं हम लोग, ये जो स्टैट्स वैट्स के पेपर्स आ जाते हैं हमारे go पास, through it. we go through them, but there is no such thing कि हमने क्या कहना है और मैंने क्या पूछना है और किसने क्या करना है। नहीं, इसलिए तो वसीम इतने सख्त, वसीम से ज्यादा मोइन भाई और मिसबा नाराज होते हैं कि मैं अचानक सवाल कर देता हूँ बगैर किसी इंटीमेशन के। स्पेशली वे फॉरवर्ड। Especially way forward. क्रेडिट स्पोर्ट्स को जाता है कि क्रिकेटर्स के साथ साथ उन्होंने वो जो अंदर का फनकार निकाला है ना, वो तो है। बहुत बड़ा और achievement आपका गब्बर सिंह तो लेजेंडरी। जब भाई आपका बात गब्बर करते सिंह, हैं तो दूर की कोड़ी लाते हैं। वो क्या था? तो इस पे हो जाए ना, तो अरे फिर याद किया। ये बात। With that, we're going to take a break here on the Pavilion. When we come back, more on the other side. Stay with us. पिदी फुल चुन के पिदी टी करे के पिदी फुल चुने। वेलकम टू द पेविलियन। मैं हूं फखर-ए-आलम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड द ARY Zap app, and in the pavilion I am joined by 4 outstanding cricketing minds. I've got Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan, and Wasim Akram. And You're on fire. भाई जी, पटास खा के आए हो। चाह रहे हैं फाइनल कोई और करेगा। one slip, that's all it'll take. ओ बंदा भी जिसने तुसी तो नाग नु भी पीछे छड़ देता है। Yeah, you know what? It is one of our last shows, Wasim. Yes. Before I get into the serious bit of it, can we have the Nag one more time? That has to be, नाग has to be here. वो अभी नाग आया नहीं मेरे अंदर। अच्छा चले। Maybe by the end of दरमियान में जहाँ नाग आया, believe me. और ये आपने तैयार रहना है, मोइन आपने आप तैयार जब भी रहना है। रेडी हो बता दीजिएगा। बीन वाला रेडी है। नहीं, but वो उसको हमने पहले से बनाया कि ਜਦੋਂ मैं कहूँ मैं नागा तू शुरू हो जाना। All right, folks. It's been a fantastic road to the final. Now, Australia and India are going to be clashing tomorrow. We're going to be here with the pre-match and then, of course, the post-match. But before that, you know, we've had 2 really great semi-finals. Of course, जो पहला वाला semi-final था, ये मैच समरी आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं, फिर उसके साथ-साथ बात करते हैं. This was the first one where India absolutely outclassed New Zealand. Now 397 for 4. Kohli there making his 50th ODI century, 117. What a player he is. And then Iyer that day showed a lot of class. Gill there missing out on his century because he was looking really good. Had he not had that injury problem, he would have been really fantastic.
Rohit there, not many people would understand this scorecard when they see this 10 years down the road or 15 years down the road. But that Rohit Sharma innings is what set India up for 397. And this is the most important point that we've been talking about here in the Pavilion. कि जब रोहित शर्मा ऊपर से अटैक को, बॉलिंग अटैक को अटैक करते हैं, वो पीछे के सारे बैट्समैनों के लिए दरवाजे खोल देते हैं. Saudi and bowled there. Saudi, they're very expensive, 3 for 100. This is how it went down. Then New Zealand in response, their openers could not flourish on this particular day. But it was the Mitchell-Williamson partnership that gave hope to the New Zealand chances. However, that hope faded away fast because the Indian bowling, well, you know what they call this? They call it the Shami final because it was Mohammad Shami. That was unbelievable. 7 for 57. That bowling card says it all. But that Mitchell century will not be forgotten. India winning this one by a very convincing margin of 70 runs and showing they are one of the best teams in this World Cup, undefeated and going into the final. उसके बाद हुआ जनाब दूसरा सेमीफाइनल. किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये सेमीफाइनल इतना सनसनीखेज होगा और ये लो स्कोरिंग गेम होगी. ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और हम सब समझ रहे थे क्योंकि पिच रिपोर्ट में हमें बताया गया था कि ये 300 रन बने आराम से और ये जीतेंगे बड़े आराम से. लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो उस पिच ने कोई अलग ही लश्कारे दिखाए. एंड देन यू सॉ दैट द ऑजी सीमर्स, द फास्ट बॉलर्स, दे अटैक्ड द साउथ अफ्रीकन्स रियली हार्ड एंड डिस्ट्रॉयड द टॉप ऑर्डर. हाउएवर, इट वाज मिलर द किलर विद दैट thriller of a century that stole the night away for South African batting, with Klaasen coming to the party with 47. Had Klaasen stayed there and he was looking like he was very good, this would have been a different total and maybe we would have had a different result. However, Australia started off, Travis Head came out all guns blazing and took on the South African bowlers. Maybe a trick missed there by the South African captain to wait too long to bring his spinners. However, it was Travis Head. Smith there with the 30, but an irresponsible shot that could have costed Australia the semi-final. Eventually, it was Inglis and the captain that really finished up the game for Australia. Australia winning this one by 3 wickets, and that's how these two teams have made it to the final. It's been fantastic, Wasim. But एक चीज़ है, ये तो हम कल बात करेंगे इसकी क्रिकेट के ऊपर और सारी टीमों के ऊपर because we've got a lot of things to talk about. Let's talk about ODI cricket in general. Okay. अगर आप देखें अभी जो फ्यूचर ऑफ ODI है इस टूर्नामेंट के बाद यानी कि वर्ल्ड कप के बाद स्ट्रेट अवे मैं ये जरा रीड करता हूँ. ऑस्ट्रेलिया only has 11 ODIs this year. England has only 8 ODIs this year. इंडिया के 6 ODI स्केड्यूल्ड हैं इस साल में. साउथ अफ्रीका के 6 स्केड्यूल्ड हैं. न्यूजीलैंड के 3 हैं और पाकिस्तान का कोई भी ODI इस साल स्केड्यूल्ड दिस कमिंग ईयर उसकी मैं अगले 12 महीने की बात कर रहा हूँ इस पूरे साल की. ठीक है, 12 months. ये आपकी स्क्रीन पे आ गया फॉर द नेक्स्ट 12 months. If you look at that, I mean, me and Moin were discussing this on the way in. Remember, Moin, कि जब हम खेलते थे क्रिकेट कम से कम भी नहीं तो हमें 32 से 35 वनडे कम से कम हमारे होते थे साल की. ठीक है, आई कैन इमेजिन एक और फॉर्मेट आ गया है, T20 आ गया है. बट अब जैसे टेस्ट क्रिकेट में गैप बढ़े थे ना, बड़ी कंट्री बिग नेशंस, क्रिकेट प्लेइंग नेशन, दैन द अपकमिंग नेशंस, वो बढ़े हैं और वनडे क्रिकेट में भी वो होना शुरू हो गया है और गैप बढ़ता जा रहा है. इसीलिए आप देखें जो फाइनल में जो दोनों टीमें आई हैं, अब इस फॉर्मेट का इंपॉर्टेंस क्यों है मेरे लिए, बिकॉज इसका माइंडसेट डिफरेंट है. शोएब जो प्रेजेंट प्लेयर है, मिसबा कैन एक्सप्लेन इट बेटर इन अ वे फॉर अ बैटर एंड फॉर T20 में तो आगे ठाटू करना है, इसमें अपने इनिंग बनानी है. और दोनों जो फाइनलिस्ट आए हैं, एक में 9 टेस्ट प्लेयर हैं, एक में 10 टेस्ट प्लेयर हैं. ऑस्ट्रेलिया के 8 हैं, ऑस्ट्रेलिया के 8 हैं और 9 हैं, वाइस वर्सा सेम फॉर इंडिया. सो दैट शोज इन द एंड कि लंबी क्रिकेट खेलने वाले ही वनडे में परफॉर्मेंस करेंगे ऑन रेगुलर बेसिस. दैट्स द फैक्ट, इजंट इट बॉयज? एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ मिसबा, मैं लेट मी ब्रिंग दिस कॉन्वर्सेशन क्योंकि वसीम ने बड़ी ज़बरदस्त बात ही कर दी है कि लॉन्ग फॉर्मेट खेलने वाले जो हैं वो आते हैं. पुराने वक्तों में, अगर पुराने से 90s की क्रिकेट ले लें, ये जो एरा थी वसीम एंड मोइन की, इस एरा को अगर आप ले लें तो हमारा डोमेस्टिक जो था 4 डे के ऊपर बड़ी तवज्जो दी जाती थी. राइट, वो पेंटागुलर विल्स कप वगैरह टाइप की चीज़ें होती थी, सारे होता था. पेंटागुलर क्या वनडे टूर्नामेंट होता था. हाँ, वो भी होता था. वनडे टूर्नामेंट उससे पहले विल्स कप was huge. रेगुलर मैं पाकिस्तान टीम में जाम ये होता था, अगर टूर खत्म है तो सीधा वापस आके उसमें जो भी मेरा डिपार्टमेंट पिया था, ये मोइन भी वापस, मैं भी सारे स्ट्रेट अवे उसी टूर्नामेंट की वजह से टीम में आया. Yes, and so did Saklan as well. Yeah. So the question that I wanted to put forward actually for all of you is that लंबे फॉर्मेट की
गेम खेलने के बाद लड़कों को चूज किया जाता था और दे यूज्ड टू मेक देयर Yes. वे इनटू द पाकिस्तान टीम। अभी ये तो नहीं हो रहा कि हम बहुत ज्यादा पीएसएल और लीग की परफॉर्मेंसेस 20 ओवर्स पे देखते हैं, कोई लड़का बहुत जबरदस्त करता है, वो इसको टीम में लाओ, टीम में लाओ। आई हैव अ वेरी क्विक एग्जांपल, बिकॉज मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, उनको भी बोलने देता हूँ। एग्जांपल ये कि लंबी क्रिकेट का प्लेयर जो है ना, वो जो फर्स्ट क्लास से आया, जो सिस्टम, फॉर इंस्टेंस आप अब्दुल्ला फारूक अपना कौन है लड़का, अब्दुल्ला शफीक को ले लें, वो 4 डे से स्कोर करके आया, टेस्ट मैच में भी 200 किया, 100 किया उसने, वो अडेप्ट कर सकता है टू वनडे एंड देन टू T20। Correct. Only I think one player I remember in world cricket who came as a T20 specialist and then became one of the greatest in test cricket too, and that is David Warner. David Warner. So एक आया है 148 148 years की हिस्ट्री। अनदर एग्जांपल वसीम भाई, बाबर आजम जो है वो बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के आया है। Yeah. उसने कंसिस्टेंटली ऊपर 2-3 सीजन रन्स बनाया है तो वो आया है। इसीलिए उस एज यू सेड के अडेप्ट करना इजी हो जाता है। अब वो क्यों इजी हो जाता है? वो इसलिए इजी हो जाता है कि जो वसीम भाई ने एग्जांपल दी है कि जो ऑस्ट्रेलिया के उनके 9 या 10 हैं और इंडिया जो है 10 या 11 इन्हीं नंबर्स में है। वो इसलिए है क्योंकि जब आप टेस्ट या 4 डे क्रिकेट से आते हैं ना, तो आप डिफरेंट सिचुएशन में बैटिंग करते हैं, आप डिफरेंट सिचुएशंस में बॉलिंग करते हैं, कंडीशन भी डिफरेंट होती है ड्यूरिंग द गेम ना, क्योंकि चीज़ें चेंज होती हैं। चीज़ें ऐसे चेंज होती हैं कि एक बॉलर आता है, शायद उसका फर्स्ट स्पेल अच्छा नहीं हो रहा होता, वो मिडिल वाला स्पेल आगे अच्छा करता है, एज अ बैटर आपको उसको और अच्छे से खेलना पड़ता है। तो उसकी ये वजह बन जाती है कि दैट यू आर रेडी टू डील विद एनी सिचुएशन। इसलिए आप देखें कि जो T20 वाले प्लेयर्स हैं, जब वो टेस्ट खेलते हैं या ODI क्रिकेट खेलते हैं, तो जैसे सिचुएशन चेंज होती है तो उनको वो बी प्लान पे जाना उनकी समझ नहीं आती है क्या करना है, उन्होंने सी प्लान पे जाना समझ नहीं आती है। तो सबसे पहले आपने जब compete करना है एट अ हायर लेवल इन अ बिगर फॉर्मेट लाइक टेस्ट क्रिकेट एंड ODI क्रिकेट, तो उसमें आपको हर चीज़ के लिए रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट सिनारियोज आएंगे तो आपने उनके साथ डील करना है। लेकिन अगर आप रेडी नहीं हैं तो उसके बाद फिर वही है अल्लाह दी सुपुर्द। आगे सॉरी मिसबा, यू लाइक टू ऐड टू दैट? देखिए, सारी चीज़ें जो इन्होंने बातें की हैं, बिल्कुल अगर आप देखें इंडिया क्यों डोमिनेट कर रही है, उनके जितने प्लेयर हैं वही T20 में डोमिनेट कर रहे हैं और वही टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेट कर रहे हैं। तो अब बीच का जो फॉर्मेट है वो हमेशा अच्छा खेलेंगे। आपको लॉन्गर जो वर्जन है उसके भी अब अच्छे बॉलर हैं और बैट्समैन भी हैं, और फिर T20 भी आप IPL खेल रहे हैं और ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आगे चल के। कोई एक आधा प्लेयर तो T20 में ऐसा ज़रूर हो सकता है कि जिसको आप स्पेसिफिकली उस रोल के लिए लेके आए, जैसे मैक्सवेल है। लेकिन अगर आप अपनी बैटिंग लाइनअप में या बॉलिंग में टोटल 3-3, 4-4 प्लेयर, 6 में से 4 उसी किस्म के प्लेयर रखेंगे और बॉलर भी 5 में से 3 आपके वो T20 वाले होंगे, तो जब भी आप मिडल वाला फॉर्मेट खेलेंगे ODI क्रिकेट, आप स्ट्रगल करेंगे। तो हमें क्या करना है इस सूरत हाल में? अगर हम 0 खेल रहे हैं वनडे, तो देन फोकस ऑन द टेस्ट मैचेस एंड T20। तो वो आपको जो एक बैलेंस देगा कहीं ना कहीं। एंड देन ऑलवेज चूज प्लेयर्स जिनकी बेसिक्स अच्छी हैं, जो लॉन्गर फॉर्मेट के भी अच्छे प्लेयर हैं और T20 में भी वो अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, उनको प्रेफर करें इवन छोटे फॉर्मेट में। तभी मेरे ख्याल में आप बेहतर कर सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, जैसे इंडिया कर रहा है। इंग्लैंड ने भी अगर नहीं किया इस तरह, मतलब उनके भी बहुत ज़्यादा अगर प्लेयर्स दूसरे फॉर्मेट्स के आए हैं, तो उन्होंने भी स्ट्रगल किया, बॉलिंग में भी स्ट्रगल किया, बैटिंग में भी स्ट्रगल किया। मोइन, क्या ICC को चाहिए कि वो जो वर्ल्ड कप सुपर लीग होती थी एक 2020 से 2023 तक जो खेली गई, उसमें सारी टीमों को मेरे ख्याल 24 ODIs खेलने होते थे, और उसमें छोटी टीमों को भी, आयरलैंड, अफगानिस्तान, नेदरलैंड टाइप की टीमों को भी जो था मौका मिलता था कि वो भी दे गेट इनफ ODI गेम्स। यू थिंक मे बी वी शुड रिवर्ट बैक टू दैट? Well, it depends. Again, I think जितनी T20 क्रिकेट ज़्यादा हो चुकी है इस वक्त नेशनली, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। इवन द बायलैटरल सीरीज़ जो अरेंज नहीं हो पा रही, जो आगे हम देख रहे हैं, आगे जो ODIs जो बड़ी टीम है वो बहुत कम हो गए उनके। इवन पाकिस्तान का कोई नहीं, अभी हमने बात की न्यूजीलैंड के 3 मैचेस हैं, साउथ अफ्रीका के जी बिल्कुल 6 मैचेस हैं। वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ दैट मोस्ट ऑफ द नेशंस दे आर
ऑर्गेनाइजिंग देयर ओन लीग्स, प्राइवेट लीग्स भी आ गई हैं, जिस तरह T10 आ गई है बीच में, तो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि मुश्किल हो रही है वो टाइम जो विंडो क्रिएट करना, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है आईसीसी को भी, कि आईसीसी ने भी हर प्रॉब्लम आगे भी इनको आएगी जी। बिकॉज जैसे अब आपने बताया इन्होंने वनडे तो बहुत कम हो रहे हैं, अगले साल उसके अगले साल का पता नहीं, और 2027 के वर्ल्ड कप में इन्होंने रैंकिंग यूज करनी है, क्वालिफाइंग करनी है। अब जब आपके मैचेस ही कम हैं तो वो रैंकिंग कैसे फेयर होगी? टीम इज प्लेइंग 10 वनडेज अ ईयर और एक 30 खेल रही है तो उसकी तो रैंकिंग अपने आप बढ़ेगी, तो ये भी प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल 100% होगी, और मेनली वसीम भाई T20 है, जिसकी वजह से बिकॉज के आईसीसी को हर क्रिकेट बोर्ड को अकोमोडेट करना पड़ रहा है, बिकॉज इट्स बेसिकली रेवेन्यू जनरेशन वेंचर्स होते हैं, बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं सब लोग। क्रिकेट चलानी है, डेवलप करनी है। आई थिंक फॉर डेवलपमेंट ऑफ द गेम इट्स ओके, बट जो कम हो रही है इसको बहुत सीरियस लेना पड़ेगा, बिकॉज क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वरना कम होती चली जाएगी। All right, with that we're going to take a break here on the Pavilion, but when we come back there's more. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. मैं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड द ARY Zap app, and tomorrow is the big day. It's the final of the ICC World Cup 2023, and tonight I am here with my colleagues Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan and Wasim Akram, and we're talking generally about ODI cricket के बारे में हम लोग बात कर रहे थे अभी ब्रेक पे जाने से पहले। इसी डिस्कशन को आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि मोइन आपने अच्छा पॉइंट आउट किया कि लीग्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो बढ़ गई है और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ और इकोनॉमिक सेंस जो है इसकी वसीम वो प्रेसिडेंस लेती जा रही है। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो आईसीसी के लिए मुस्तकबिल में कंट्रोल करना, क्रिकेट कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा इंटरनेशनली, बिकॉज एवरीबॉडी सेड लुक आई डोंट नीड टू वरी। कल वसीम भाई ने बात की थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि जो वनडे का जो 50 ओवर का जो हमारे वो लेंदी मैच है ना, उसको थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा कम, फिर ही जाके इसका सही बिल्कुल, और एक बॉल बेहतर हो सके, 40 ओवर, या ताकि यंगस्टर्स भी वनडे की तरफ वापस आएं, थोड़ा टाइम भी कम, यू गुड फॉर स्पॉन्सर्स, स्लाइटली फास्टर गेम, यू कैन हैव द काइंड ऑफ सेम रूल्स, 8 ओवर पर बॉलर, एंड इल बी डबल ऑफ T20 ऑब्वियसली, सेइंग द ऑब्वियस, बट एंड आई थिंक दैट्स द वे फ्यूचर फॉर वनडे क्रिकेट, बिकॉज आजकल के दौर में पीपल हार्डली हैव टाइम, और अटेंशन स्पैन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज जस्ट वे टू लॉन्ग। ग्रेट टूर्नामेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, एवरीवेयर इट्स हैपनिंग, लाइक क्रिकेट इज हैपनिंग एवरीवेयर। अभी अनफॉर्चुनेटली हमने देखा जो एशिया कप हुआ था, आपने वहाँ पे टर्न अराउंड देखा था पब्लिक का, बहुत कम था, टर्न आउट बिल्कुल कम था। लीग्स वाइज देखें, लेजेंड्स लीग हो रही है, मिसबा प्लेड अभी अमेरिका में थे, US T10 guys were in Qatar, and these guys are busy, that's great. The cricket is like normal cricket, तो बहुत वैसे भी वसीम भाई अगर हम पूरी दुनिया की तरफ देखें ना, तो रिसेशन की तरफ जो है चीज़ें जा रही हैं, लेस अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू अर्न मनी एंड रन देयर हाउसेस, तो उस हिसाब से भी ना वो अब तकरीबन 10 घंटे लग जाते हैं ओडीआई को मैच देखना। If you're a commentator, that's I'm talking about if game अभी श्रीलंका में थे, टीम 3 o'clock game start Sri Lankan time, our call time was 12, quarter to 12, 11:30 हम निकलते थे, या जो भी आपका होता था कॉल टाइम। So I think शोएब जो है वो पब्लिक के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है कि पब्लिक को भी घंटा लगाओ मैच शुरू होने से पहले, और फिर वो तो 12 घंटे निकल गए ना, मतलब 12 घंटे आपके गए तो मतलब काम कब करेंगे आप? तो हर बंदा जो है वो देखता है अपॉर्चुनिटी के लिए टू रन देयर फैमिलीज। तो इसी तरह दुनिया में, तो अगर एज वसीम भाई सेड कि अगर इसको शॉर्ट किया जाए इस फॉर्मेट को, तो इस तरफ लोग वापस से अट्रैक्ट हो सकते हैं। इंग्लैंड में जब काउंटी में खेलता था, संडे लीग होती थी, एक था बेंसन एंड हेजिस, दैट वाज 55 ओवर्स, देन नेट वेस्ट दैट वाज 60 ओवर्स, जो खत्म ही नहीं थे होते, उसमें लंच भी था, टी भी होती थी, और फिर था 40 ओवर्स जो सिर्फ संडे के संडे होता था, और उसमें प्लस उसमें मज़े की बात क्या थी कि रन अप था कि 17 जो भी उन्होंने लगाया होता था, एक उनका था आई थिंक देयर वाज 17 मीटर्स और लेस इवन, बट 10 मीटर्स में भी 10 मीटर्स पे वाइट लाइन लगाते थे मैच से पहले, उससे ज़्यादा रन अप कोई नहीं था ले सकता, और लकीली मेरा रन अप ही वो था, सो इट वर्कड फॉर मी, बट फॉर बॉलर्स हु हैड लॉन रन अप दे स्ट्रगल्ड, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, इट वाज टोटली डिफरेंट बॉल गेम फॉर बॉलर्स। आपके लिए उनको मजीद कम करना चाहिए। रन अप जिनका छोटा है वो बड़ा करेंगे, और जिनके बड़े रन है वो छोटा करेंगे, तब प्रॉब्लम डेफिनेटली होती थी मुझे, फिर तो प्रॉब्लम होनी थी सीधा। दिस वर्ल्ड कप हैज बीन फैंटास्टिक फॉर बैटर्स, मिसबा, 630 something odd sixes hit, 636 sixes that have been hit, 39 centuries, strike rate 93 and batting average 32। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है इस वक्त लिखा हुआ।
ਸਫਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਆਹੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਪੜਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਮੈਂਟ करना मेरा काम है फैक्ट आकर उन्होंने देना stats पढ़े, आपने ये बताना है कि किस किस डायरेक्शन में वो छिक्के देखिए लगे। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हर कोई फोर्स ही कर रहा था कि इंडिया में आप खेलने जा रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म की ग्राउंड हैं, पिचें बहुत अच्छी हैं। जब भी हम भी वहाँ पे जाके सीरीज़ खेले हैं तो हमारा उस टाइम बॉलिंग अटैक वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक था, स्पिन बॉलिंग, पेसर्स। लेकिन पता ही नहीं चलता था यार, 300 रन तो ऐसे होते थे ना करते करते भी 300 सवा 300 वहाँ पे होता है। और आप भी मैं जब पहली दफ़ा गया था तो कई दफ़ा आप अपने बल्ले देखना शुरू हो जाते हैं, जो डिफरेंट साउंड आते हैं वहाँ पे जब आप शॉट खेलते हैं, क्योंकि ट्रू पेस है, बाउंस अच्छा है। आप जब शॉट मारते हैं तो कहीं भी और इस तरह फीलिंग नहीं आती बैट्समैन को जैसी इंडिया में आती है। एंड देन यू गेट वैल्यू फॉर योर शॉट्स। जैसे ही हल्का सा साइड पे होता है किसी फील्डर से तो वो चौका रुकता नहीं है इतने आराम से। तो दैट वाज द रीज़न आई थिंक। और फिर जिस किस्म के रूल्स हैं वो भी 4 फील्डर जी आपके सिर्फ बाहर हैं इन बिटवीन, जो सबसे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है। पहले 10 ओवर का पावर प्ले है। इट वाज ऑन द कार्ड्स के यार 350 तो बनने ही बनने हैं यहाँ पे। अभी मुझे लगता है कि फिर भी बहुत सारे मैचेस में उस तरीके से रन नहीं बने। कई पिचेस पे अभी भी बॉलर्स को हेल्प मिली है। इवनिंग टाइम पे उस टाइम पे तो बड़े बड़े रन चेज हो जाते थे। इस टाइम मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप में बहुत सारे वेन्यूज़ पे ठीक ठाक हेल्प मिली है बॉलर्स को, स्विंग हुआ बॉल। That really impressed us, Misbah. We were discussing off बिल्कुल air as बैलेंस well कर दिया कि उसने इंडिया में जो competition वर्ल्ड को। कप में वी थॉट कि हर मैच में 4-4 स्कोर होगा, Right. बट जो हम सब ने इम्प्रेस किया कि हर ग्राउंड की पिच का बिहेवियर वाज डिफरेंट। और एक वसीम भाई ये चीज़ हमें शो करती है जब हम बार बार ये सवाल करते हैं कि इंडियन बैटर्स इतने अच्छे टेक्निकली और कंडीशंस को अडॉप्ट कैसे कर लेते हैं। तो बेसिकली इस वर्ल्ड कप में वो चीज़ क्लियर हुई है कि भाई हर वेन्यू दूसरे से डिफरेंट है। कहीं बाउंस पेस है, कहीं स्पिन है, कहीं पे थोड़ा सा स्लगिश पिच मिलेगी। कलकत्ता में देख लें, यू हैव टू हैव डिफरेंट सेट ऑफ स्किल वहाँ पे खेलने के लिए। और जब आप मुंबई में खेलने जाते हैं दैट इज़ टोटली डिफरेंट। फिर आप बाकी जो चेन्नई में है वो टोटली डिफरेंट है, बैंगलोर, और ग्राउंड डायमेंशंस भी डिफरेंट है। तो बॉलर्स के लिए भी और बैटर्स के लिए भी उसको अडेप्ट करना, ये बाउंड्री छोटी है, यहाँ पे सामने बाउंड्री छोटी है, अच्छा यहाँ पे हमने पिच को कैसे अपनी फेवर में यूज़ करना है। दैट्स व्हाई आई थिंक वो हर जगह पे जहाँ पे भी जाते हैं जैसी कंडीशंस में वो सक्सेसफुल भी हैं और जल्दी वो चीज़ों को अडेप्ट भी करते हैं उन कंडीशंस को। ग्रेट लर्निंग्स हैं सब कॉन्टिनेंट की टीम्स के लिए कि जो इंडिया में होता है वही अपने मुल्क में भी करने की कोशिश शुरू कर दें। आई थिंक अ बिग लर्निंग कर्व। हमारा मलिक जो सबसे बड़ा मसला है कि हम हमेशा से सुनते हैं हमारे हर वेन्यू पे उससे ये नहीं कि उस इलाके की जो मिट्टी है या जो वहाँ पे सॉइल है उससे हम क्या करते हैं, हम हर जगह पे वो एक ही जगह नंदीपुर की मिट्टी, इवन वो अबू धाबी में गई है तो उस पिच की भी वो सेम बिहेवियर है जो यहाँ पे होता है। लाहौर, कराची, पिंडी, स्लाइड से डिफरेंस आता है। वो चीज़ नहीं है कि एक नेचुरली यार पिंडी में पहले स्पिन पिचेस बनती थी क्योंकि वो उनकी जो सॉइल वहाँ की थी वो यूज़ करते थे। कराची टोटली डिफरेंट होता था, लाहौर डिफरेंट होता था, गुजरांवाला में जाते थे तो बाउंस मिलता था, सियालकोट में बाउंस मिलता था। अब वो आप जहाँ मर्जी चले जाएं वहाँ पे वही चीज़ है। पता है जी बैटिंग पैराडाइज है, बॉलर्स को कुछ नहीं मिल रहा, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जस्ट प्रोड्यूस प्रॉपर क्रिकेट। चीज़ है अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो हम अगर सेलेक्ट करते हैं अपने जो प्लेयर्स हैं पीएसएल के उससे तो पीएसएल में ही हम लोग जो है वो डिफरेंट जो है कंडीशंस देनी शुरू कर दें। एटलीस्ट हमारी प्रोडक्ट जो है वो रेडी तो हो डिफरेंट कंडीशंस में खेलने के लिए, वो चाहे बॉलर हो, बैटर हो, चाहे स्पिनर हो। I completely agree with that. Another very thing, Moin actually brought this point up, and I think इसके ऊपर बात होनी जो है वो बनती है, बल्कि आप ही शुरू कर दें। मैं एक पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई होप आप सबने भी ऑब्जर्व किया होगा। जब भी पाकिस्तान का मैच हुआ है हमने देखा ग्राउंड में बहुत क्राउड आया। इट क्लियरली शोज दे वांट टू सी द बायलैटरल सीरीज। ये मेरा पॉइंट है और ये हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट इट बिकॉज दिस प्रोग्राम इज गोइंग वर्ल्ड वाइड, स्पेशली इंडियंस बहुत ज़्यादा हमारे प्रोग्राम को फॉलो करते हैं। आई थिंक
वांट कि बायलैटरल सीरीज होनी आई थिंक जिस किस्म की रिसेप्शन पाकिस्तान टीम को मिली, वसीम हम बात कर रहे थे इस पे, याद है जब टीम हमारी पहुंची एयरपोर्ट पे लोग मौजूद थे, I knew this will happen to Pakistan. because you have the experience, right? Nobody knows India better than you. ये तो हमेशा होता है, क्वेश्चन अबाउट right? तो इससे so I think Moin has a very good point कि लोगों का आना, पाकिस्तान के मैच में स्टेडियम में आना, टिकट लेकर खरीद के खुद देखने आना, इवन व्हेन इंडिया वाज नॉट प्लेइंग पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान मैच तो चले अंडरस्टूड सी बात थी कि इंडियन सपोर्टर्स गोइंग टू सपोर्ट इंडिया, वो भी जब यहाँ आते हैं, हाँ तो हम so they get the same reception. right. Same So I think Moin has a very good point that the people of both India and Pakistan want to see a bilateral series, and I would definitely urge. Fingers crossed. In fact, you should urge mostly. Your voice is heard in across the border a lot. Yeah, I'm all for it. India पाकिस्तानी क्रिकेट से अपार्ट फ्रॉम क्रिकेटर्स को फ़ायदा तो फाइनेंशियली के अलावा बोर्ड्स को भी होगा, और वही फाइनेंशियली फ़ायदे की इसलिए बात करूं कि वो पैसा फिर आप अपनी ग्रास रूट क्रिकेट पे लगा सकते हो, एंड प्लस पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, पॉलिटिक्स का आई डोंट फॉलो, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन सो आई डोंट कांट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, बट या पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. Cricket is one sport they bring countries together, and that's why I think so the few Pakistanis that did go to India, जो कुछ वीज़ा मिले थे, जो जर्नलिस्टों को वीज़े मिले थे, अगर आप देख लें शायद हाशमी साहब हो जाएं या हमारे और बड़े बड़े जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट गए हुए थे, जो उन्होंने वहाँ से स्टोरीज शेयर किए हैं, तस्वीर शेयर किए हैं, लोकल जर्नलिस्ट के साथ, इंडियन जर्नलिस्ट के साथ उनके घरों पे खाना खाना, ये करना वो करना. So I understand we have disagreements between the two countries, fair enough. We have different geopolitical interests, fair enough. That's up to the big boys, the politicians, to have a dialogue about it and move it. But let's not hold cricket hostage to these things. Let's open up this, at least the sporting discipline. Competition ho, competition ho, healthy competition. And with that, we're going to take a break here. When we come back, there's more on the other side. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं A Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup, and tomorrow is the big day. It's Australia versus India for the final. Which team is going to walk away with the crown? We'll find out. But tonight we're talking about just generally other things. Break पे जाने से पहले मोइन ने एक बड़ा अच्छा point किया था कि there should be India-Pakistan bilateral series because the people on both sides of the border want to see that. And we'd really like to see that. Let's talk about a few other things. Interestingly, aggressive batting has been the key here. और आज जो दो टीमें हम जिनकी बात करें जो फाइनल में गई हैं, उन दोनों, ये वो वाहिद टीमें हैं जिन्होंने 6 रन्स पर ओवर की एवरेज से ज़्यादा अपने पहले 10 ओवर्स में बैटिंग की है. No other team in this World Cup has done that. These are the only two teams, Australia and India, that they did by playing proper cricketing shots. Yes. Not slogging, not pinch hitter. Great player like Rohit Sharma starts off playing his shots, then Gill starts from India, and then same go for Australia. Now पहले Mitch Marsh था, अब Travis Head है, उसके साथ Warner to be now. He's one of the greatest modern great of all time. The way he bats, I mean what I love about अभी semi-final में वो David Warner क्या करता है, वो पूरी टीम को लिफ्ट करता है, जो वो फील्डिंग करता है. जहाँ भी खड़ा ही dives, he's at it, उसकी थ्रो भी गोली की तरह आती है, मैच वो हार भी रहे हो. That's very important, and it's a habit. अगर आप शुरू में नए टीम में आए, आपकी पहली थ्रो 3 ठप्पों में जा रही है, तो वो सारी उम्र आपकी आदत रहेगी. बिकॉज इट्स थ्रो का ये अब कई कहते हैं रैंडम, हमारे यहाँ अजीब भी कल्चर है, अजीब कल्चर, क्रिकेटिंग कल्चर की बात कर रहा हूँ. थ्रो नहीं करो बाजू खराब हो जाएगा, तो बाजू कितने लेके जाना है? ये थ्रो के लिए है ना, जिस तरह आप कहते हैं ना बल्ला कितने लेके जाना है. एग्जैक्टली, मैं नहीं, अंपायर साहब कहते थे. ये देखिए, इसी की बात कर रहा हूँ. इससे बॉलर के अलावा पूरी टीम लिफ्ट होती है. प्रेशर ही इतना उन्होंने डाल दिया था अर्ली ऑन, बिल्कुल रन ही नहीं थे ना, पक्के चौके थे जो उन्होंने रोके हैं. एकदम बैट्समैन, एक तो विकेट ऐसी कि आपको वैसे ही बॉलिंग कोई आपको बॉल ही नहीं दे रही, ऊपर से जो कोई एक मिडल होता था को 3 ओवर के बाद वो भी आप जो है वो रोक लेते हैं. तो प्रेशर तो एक चीज़ यहाँ से हमें पता चलती है, ये जो हम बात कर रहे हैं कि की टू सक्सेस, एक तो रन रेट तो है ही है, लेकिन उसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें पिक करनी है कि भाई टेक्निक आपको बड़ी ज़रूरी है.
कंसिस्टेंसी तभी आएगी अगर आपकी टेक्निक अच्छी होगी। टेक्निक नहीं होगी तो वन ऑफ होगा। वन ऑफ होगा। हमें कंसिस्टेंट, हम क्यों T20 से कहते हैं जी मॉडर्न डे क्रिकेट है। मॉडर्न डे क्रिकेट तो ठीक है, आपने वन ऑड 1-2 शॉटें मार दी, बट एट द सेम टाइम योर एवरेज ऑल्सो मैटर्स एंड दैट इज द की। वरना उसका फ़ायदा ही नहीं ना। आपको एक मैच, आपने 5 मैच या 6 मैच जीतने हैं और एक बैट्समैन 7वें में स्कोर करता है तो आपकी टीम तो पहले ही बाहर हो गई है ना। उसका इंतज़ार करते रहेंगे कोई 6ठे 7वें में करेगा। तो आप ठीक है ये सारी चीज़ें देखें, मॉडर्न डे क्रिकेट सारी चीज़ें, बट अगेन कंसिस्टेंसी इज़ द की। टेक्निक उसकी है। इसमें डेविड वार्नर की आपने बात की, तो ऐसी फील्डिंग कब आप करते हैं? 2 एलिमेंट्स हैं उसके। एक आपकी फिजिकल फिटनेस, वो यहाँ पे होनी चाहिए, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट अलाउज यू टू स्टे कंसिस्टेंट। यही विराट जो है वो क्यों रन्स बनाता है। अगर ठीक है उसे वो जो उसका प्रोसेस है रन्स बनाने का वो उसे आता है, लेकिन अगर उसकी बॉडी साथ नहीं देगी वो कहाँ से बनाएगा रन्स। अगर डेविड वार्नर जो है लेफ्ट राइट जो डाइव करता है, 50 ओवर फील्डिंग करके भी ये करते हैं। तो ये फिजिकल फिटनेस, उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ है, हम लोग वी डू डिस्कस अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट टीम कि जस्ट फाइट टिल द लास्ट बॉल, ये हमें चाहिए, बट आर वी केपेबल इनफ टू डू दैट? आई डोंट थिंक सो। ओके, वो इसलिए वर्कलोड मैनेजमेंट आप थोड़ा इस पे भी ज़रूर बताएं। वर्कलोड मैनेजमेंट जब से कॉन्सेप्ट आया है, मैंने देखा प्लेयर्स के अंदर जान नहीं मारनी पूरी, एनर्जी बचानी है। बॉलर आ रहा है तो वो 2 ओवर ही कर रहा है, तीसरा मैं नहीं करूंगा। मैं इसकी ना एग्जांपल ज़रूर, बहुत अच्छी बात आपने की, मैं इसकी एग्जांपल जो है ना वो देना चाहता हूँ। और ये ऐसी एग्जांपल है कि वकार भाई हमारे कोच थे। हम लोग 2015 जो है टूर पे हम लोग श्रीलंका थे। तो श्रीलंका में आपको पता ही है बहुत गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी बहुत है, यू आर स्वेटिंग ऑल द टाइम। द मिनट यू स्टेप आउट फ्रॉम द होटल और फ्रॉम योर रूम यू स्टार्ट स्वेटिंग। आई स्टिल रिमेंबर कि हमारा फील्डिंग सेशन अ डे बिफोर द गेम ऐसा होता था कि सारी जान निकल गई होती थी। वाह, सारी जान निकल गई होती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो वाले बंदे कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे जो यहाँ ब्लॉकेज नहीं रखते थे कि वो मेरी एनर्जी चली गई, मैं थक गया हूँ, मैं कल पता नहीं क्या होगा। नहीं यार, ये कोई मकसद ही नहीं बन रहा। सिर्फ कुछ ये भी तो कहते हैं 5-3 छुआरे खा लो ताकत आ जाएगी। दो जलेबी। उसके साथ ये जरूर है मोइन भाई कि प्रोफेशनलिज्म भी, अगर आपकी फिजिकल फिटनेस यहाँ आप चाहते हैं तो प्रोफेशनलिज्म भी आपका यही होना चाहिए। वही जो इंटेंसिटी है वो उसमें ये आता है कि आपने रिकवर कैसे करना है। आपने रिकवरी में आपको क्या चीजें चाहिए, और ये नहीं होगा अगर 15 लोग हैं तो 15 को डिफरेंट चाहिए टू रिकवर। सो प्रोफेशनलिज्म वहाँ आ जाता है। प्रोफेशनलिज्म आपको खुद सीखना है। जैसे आप अकेले बैटिंग करने चले जाते हैं ना, या बॉल आपके हाथ में है, वो भाई अब आप नहीं करना है। तो इसी तरह आपने स्किल पे अगर काम करना है तो ये चीज़ों पे भी सीखना है कि मैंने रिकवर कैसे करना है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ करनी है। उसमें आइस बात आ जाता है, उसमें आपके बहुत सारे जो है कार्ब्स, आपको हेल्दी कार्ब्स खाने पड़ते हैं जिससे आप फास्टर रिकवर करते हैं। हेल्दी कार्ब्स क्या है ये भी एक्सप्लेन कर थोड़ा। हेल्दी कार्ब्स में तो पिछले साल भी उसमें वाइट राइस आ जाते हैं, उसमें मैश पोटैटो आ जाता है, उसमें स्वीट पोटैटो आ जाता है, उसमें आप जो है आपके जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हम इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो लेना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग द गेम्स। फिर जो आपके जेल्स हैं जो आपको इंस्टिंक्ट एनर्जी देते हैं, अगर आपके पास वो नहीं है, खजूर, केला, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको इंस्टिंक्ट जो है एनर्जी देती हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात, जिस तरह आपने वसीम कहा ना कि डेविड वार्नर टीम को उठा लेते हैं, थ्रो खिंची हुई आती है, आते साथ ही पूरी टीम को अपलिफ्ट कर देते हैं। और उन्होंने कहा वो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो सुपर फिट हैं, इस वजह से वो ये कर लेते हैं। और फिर कार्ब्स, आपने कहा रिकवरी के साथ साथ रिकवरी कोल्ड बात की बात हुई और कार्ब्स खाने के ऊपर बात हुई। बिल्कुल मुझे लगा कि जैसे आप लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, बिल्कुल जिस तरह मैं आप लोगों को अपलिफ्ट करता हूँ शो शुरू करने से। ब्रेक लो जी, चलिए ब्रेक ले ले, पहली फुर्सत में। We're going to take a break. We'll see you on the other side. Don't go away. You're watching The Pavilion. Welcome back to The Pavilion. I'm Fakhar-e-Alam. You're watching A Sports and the ARY Zap app. And tomorrow is a big day. But before that, we're just generally talking about various aspects of ODI cricket. और ब्रेक पे जाने से पहले वसीम अकरम जो थे, वसीम अकरम और शोएब मलिक दोनों मेरा जो थे वो मुआवजा कर रहे थे लाइफस्टाइल का और फिटनेस का विद डेविड वार्नर. आई एम ऑनर्ड. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द काइंड वर्ड्स. You lost me, buddy. I know I lost you a long time ago. लेकिन the amount of food you eat,
तो आपको रात की रेस्ट भी नहीं देनी चाहिए. You got to be on your toes even at night. True. But yeah, that's what I like to do. That's what I do. ये वाली कन्वर्सेशन इसका कोई क्लिप वार्नर तक ना पहुंचे बस. नहीं, मैं तो बल्कि खुद उसको टैग करके ट्वीट कर दूंगा. Look, David, Wasim says I'm as good as you in fitness. ये वो जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग इनको होगी ना, फिट की बजाय उन्होंने जो है ना फिट पढ़ लिया, तो ये उस पे काम कर रहे हैं ज़्यादातर. अच्छा, अब आ जाते हैं एज ग्रुप की जरा बात कर लेते हैं. इंग्लैंड की टीम, द डिफेंडिंग चैंपियंस, दे हैड अ बैड टूर्नामेंट. इन द एंड दे salvaged some, but it was too late for them, and that's primarily because they were the oldest average team that was playing. मतलब average team उसको जो था वो उनके average age was 33 years for them. Yeah. So does age really matter in ODI cricket now? At this, I think 33 is batters की तो peak होती है, I suppose. अगर इसका हम लोगों ने कंपैरिजन करना ही है, so 2019 का वो वर्ल्ड कप जीते हैं, वो क्या एवरेज एज थी इंग्लैंड टीम इससे की? 5 साल पीछे कर ले तो 5 साल पीछे हो जाएगी. बहुत सारे दूसरे भी थे. 29. दूसरे भी थे, but I don't know age. It's just maybe I don't not. think so. No, I don't think You so. think it's Mazhar with his random stat, one of those ones? Maybe I think he want to say कि थोड़ा सा यंग ब्लड भी टीम में होना Like जरूरी Harry है. Brook बैठा बाहर मैचेस में, या player like him. यंगस्टर एनर्जी तो क्रिएट करते हैं ना टीम में, ये तो हकीकत है. I think ये वो So basically, competition में blend of youth and experience. Ideally, that would be it for England. I think Wasim bhai, it's the quality of the player. Simply 33, 34. Exactly, I agree. It's not the age के यार इसकी वजह से टीम अफेक्ट कर रही है. मुझे लगता है कि ये बेस्ट टाइम होता है आपको अपनी गेम को समझने के लिए. आपको एक्सपीरियंस भी इतना हो जाता है खेलने का. योर परफॉर्मेंसेस समटाइम्स कम ऑटोमेटिकली. इतना आपको पता होता है चीज़ों का. ये बस वन ऑफ, जिस तरह कहते हैं कि आउट ऑफ फॉर्म, रिदम नहीं आया उनका, उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए, बस ये एक रीज़न है. अदरवाइज़ अब पिछले अगर स्टैट्स निकालेंगे ना तो मोस्टली टीमें इवन लीग्स में आपको नज़र आएंगी अच्छा करते हुए T20 में, जिनकी एवरेज एज 30 या 30 से ज़्यादा होती है. सो इट्स अ ब्लेंड. अब शुभमन गिल अगर खेल रहे हैं, यंग हैं, तो इट्स नॉट हिज एज बेसिकली, इट्स द क्वालिटी जिसकी वजह से वो खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं. तो बेसिकली क्वालिटी, स्किल, एटीट्यूड, फिटनेस, ये मैटर करता है. एक चीज़ ज़रूर है, एज इज़ जस्ट अ नंबर फॉर मी. जो अगर उनकी डेप्थ में जाएं उनकी परफॉर्मेंस की, तो वो ये था कि दे वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम डेविड मलान एंड जो रूट, कि वो सहारा देंगे. एक हर मैच में दोनों में से एक बड़ी इनिंग्स खेला करेगा. जो वी आर हाईली डिपेंडिंग ऑन ऑलराउंडर्स जो बहुत अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं. तो वो दो जो एलिमेंट थे, वो एलिमेंट्स थे जो उन पे उन्होंने स्ट्रगल किया, जिसकी वजह से ऐसी परफॉर्मेंस हुई. बॉलिंग उनको हमेशा से पता था कि हमें मारोगे, हमारे पास इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप है. जैसे वसीम भाई ऑलवेज सेज के वो जो है आदिल रशीद वो 10 100 हैं फर्स्ट क्लास में, तो वो 10वें नंबर पे आते हैं Every time. मुझे एशिया कप में कमेंट्री में जब मैं कर रहा था तो मेरे वो जो स्टैट था उस लड़के ने उसने दिया था. मैं वाओ, दैट्स अ गुड पॉइंट टू डिस्कस बिकॉज वनडे इज लॉन्ग. बातें करने को है नहीं, चलो रैंडम स्टैट विच पा दो, बट मजा ले उन्हें भी कुछ स्कोर किया होगा उसके बाद. तो ये टेक्निक तो अच्छी है उसकी. ये एक ऐसी चीज लो, मोइन भाई और ऊपर से आ गए भाई. वेल डन मोइन. फिर एक और चीज थी, दे वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम मोइन अली एंड आदिल रशीद के वो मिडिल ओवर्स में विकेट्स लेके देंगे. वो उस तरह उतना ही डिपेंड कर रहे थे जितना वो डेविड मलान और जो रूट पे कर रहे थे. वो भी वहाँ से नहीं उनको मिल पाया, इसीलिए उन्होंने स्ट्रगल की. एज की वजह से आई डोंट थिंक सो. अगर एज का मसला होता तो फील्डिंग बुरी करते, बैटिंग और बॉलिंग तो नहीं बुरी करते. तो आप ये कह रहे हैं कि एज का मसला नहीं है? एज का मसला बिल्कुल नहीं है. मिसबा सुन लिया, एज का कोई मसला नहीं है, खेल सकते हैं. मिसबा भी यही कह रहे हैं. एक्चुअली मिसबा ने मुझसे एक दफा ये बड़ी बात भी की कि मैं भी सोच रहा हूँ मैं रिटायरमेंट वापस ले लूँ. मैंने कहा मिसबा बिस्मिल्लाह कर दो. मेकिंग दिस अप? एक्चुअली आई एम नॉट मेकिंग दिस अप. ये एक्चुअल कन्वर्सेशन हुई है मेरी और मिसबा की. आई चैलेंज यू, दिस वाज एन एक्चुअल कन्वर्सेशन दैट वी हैड. ऑफ कोर्स ही वाज किडिंग, बट इट वाज एन एक्चुअल कन्वर्सेशन. ही वाज किडिंग, दैट्स ट्रू. आप बात समझिए, आज कोई और भी बैठा हुआ है, नहीं बोल सकते वो इस बारे में. अच्छा, अब मुझे पता चला मिसबा चुप चुप क्यों है मुसलसल. एग्जैक्टली. सो फॉर द व्यूअर्स जो के सोच रहे हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं, वो जो व्यूअर्स अच्छा इन्हें चुप कहते हैं भाईजान चुप ही है. आपके हिसाब से ये चुप ही है. बोलना में तो अच्छे ना
मलिक कह रहा है आपके हिसाब से ये चुप आपके ही हिसाब से चुप ही है। ये मलिक ने सही एग्जांपल दिया है है। बिल्कुल। एक बंदा किसी के घर चला जाता है ना खाने पे, तो खाना शाना खा के तो उसके बाद थोड़ी देर बाद कहता है यार कुछ कोई हाजमे वाली चीज़ नहीं है। तो वो बंदे कहते हैं लो जी ठीक हो यार नाल सब कुछ खा गया हाजमे वाली चीज़ होने लगता है इनको बोझ आ रहा है। कहना की है मैं छेड़न नहीं पूछते वो आजकल को भुख से ही नहीं लग रही। कहना यार हाजमे वाली चीज़ है ना जिस दिन भुख लगी है साढ़े घर नहीं प्लीज ना अब हम जानते हैं हम अनार क्यों इतने फड़का रहे हैं पीछे ना चोंदे बराबर I times it feel like तुम लोगों को 20-20 साल की कैद हुई थी और वहाँ खाना नहीं मिला। ऐसे खाना खाता है मेरा दोस्त। समोसा कोई नहीं छड़िया हुआ माशाल्लाह जेड़े आए सी क्या है इन्होंने मेकअप करवा के आ रहे हैं तो अच्छा मैं समोसे फड़का रहा था 10 समोसे खा गए ना जेड़े समोसे और जलेबियां दोनों भाई मैंने And you know is odd ये समोसा और जलेबी की सैंडविच बना के खाता है। that's true और I love it ऊपर पता है क्या है, एक बाइट लेते हैं फिर उसके ऊपर चाय का सिप भी लेते हैं। I have to wash it down my friend it has to be एक washed down सेकंड, ये इंसानों का काम नहीं है। मुझे पता है बहुत सारा खा के फिर ऊपर से चाय डंगरा ना काम। I don't know देखो I'm with him. I guess so this is what happens after 46 days together this is what happens मैं basically आपके साथ नहीं आप ना नहीं मेरे साथ आप भी शामिल हो इनके साथ जुमला पूरा होना ये बिल्कुल साथ मैं आपके साथ नहीं हूँ। हाँ, मुझे पता है चले बस कोई नहीं अगली दफा फिर समोसे और जब जलेबियां आएंगी तो कोई हाथ ना लगाए उनको ठीक है ना सिर्फ मैं अकेला खाऊंगा उनको गल ही खान दो तुसी Nice. yeah इसलिए कहते हैं लोग, पता है एनालिसिस पे नहीं कहते लोग, इसीलिए कहते हैं पूरा साल चलना चाहिए। ये वजह है ये वजह है ना कि जब हमारे पास बातें खत्म हो जाती हैं तो हम ठीठ बिटीटियां मारते हैं इस तरह that's की जिसको word पंजाबी में कहते हैं चबले। basically which by the way majority of the time that's what we're really doing here is चबले मारेंगे अपनी गल कर। मैं भी रगड़ी जा रही हूँ। नहीं भाईजान ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ जो सोशल मीडिया पढ़ लो ਤੁਹਾਡੇ कमेंट्स से ਤੁਹਾਡੇ लिए बहुत कुछ बड़ी बड़ी तारीफें आती हैं आप सबके लिए थैंक यू। सौ बिस्मिल्लाह सौ बिस्मिल्लाह सफा बोग गया Angelo Matthews timed out first time in the history of cricket that was something 48 साल क्रिकेट की तारीख का ये पहला वाकया हुआ। और You're ये welcome. किस तरफ से हुआ है? you think now that we look back on this World Cup and the way things have ended up you think it could have been any different? Would you like to see it any different? I forgot about it on a serious note. I really do. Don't even remember that happened. I mean, nowadays there's so much cricket going on. I know. आईसीसी का रूल चेंज करना हमने ये जरा देख लें this is what really happened Yeah, I do remember now when you put it on a television. काफी डिटेल में इस पे बात हुई थी। Yeah. आई थिंक ये रूल ही चेंज कर देना चाहिए फखर, बहुत ज़रूरी है। नहीं, अगर वो बैट्समैन लेट होता है, टीम लेट हो रही होती है, ओवर रेट स्लो होते हैं, बट वो भी ड्रामा ही है सारा। वो बहुत अंपायर सारे ये खाली ये रूल नहीं फिर बहुत सारे रूल आपको अब रेफरल देख लें, इसमें I think क्रिकेट की गेम की स्प्रिट है इसके अंदर। अंपायर कॉल वाला, रेफरल वाला, वो पानी आ रहा है, वो भी चेंज होना जरूरी है बहुत साउथ सारे अफ्रीका वाला। इवन अगर बॉल गिरी है और आपने एक देखा है कि उसको आपने बैट के साथ पुश करके फील्डर को पकड़ा दिया है या इवन आपने बॉल को उठा के किसी के हवाले और अगले अपील कर दें तो यू आर आउट। हैंडलिंग द बॉल है, हिटिंग द बॉल ट्वाइस, वो आउट है। You know, when we played, we never thought to have things like this कि बैट्समैन ऐसे भी आउट हो सकता है। We knew कि हो सकता है, but we never even Remember in 1987 World Cup when Courtney Walsh does with कादिर भाई, कि कादिर भाई भाग गए थे उसके बॉल करने से पहले ही और उसने वॉर्न करके वो वापस चला गया था। It was a good gesture. gentleman's gesture। यहाँ पे 4 कैप्टन्स बैठे हुए हैं, हम लोग डिफर करते हैं ना एक दूसरे की चीज से, तो इसमें क्लैरिटी ले आएंगे तो अच्छा है ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कैप्टन हैं तो सबकी डिफरेंट जो है वो नेचर है, तो वो कोई उसके लिए तो वो ये नहीं यार कोई मसला नहीं, कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है वो कहता है नहीं आई कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू विन अ गेम। सो द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट इज़ टू ब्रिंग क्लैरिटी इन मोस्ट ऑफ द ये जो चीजें हैं जो हम लोगों ने इंसिडेंट जिसमें टाइम अंपायर्स कॉल एज वेल। जी अंपायर्स कॉल एज वेल, एग्जैक्टली। इफ द बॉल इज either
इधर या इधर या उधर, देयर इज नो इन बिटवीन। करेक्ट। एक क्लैरिटी और चाहिए वसीम भाई। हाँ, टॉस कॉइन नहीं दिखाता क्या? अरे यार खुदा का वास्ता है मोइन भाई, और ये क्लैरिटी, ये पब्लिक डिमांड है भाई। और चीज ना वसीम भाई, अगर कोई भी मैच शुरू होने लगा ना, हम क्रिकेट पे बात करने आए हैं, क्रिकेट की सॉल्यूशंस बताने आए हैं जो हमारे ख्याल में ठीक है या गलत हैं, जो भी है हमारी एक्सपीरियंस के साथ। ये चीजें कौन देखता है? बट पब्लिक मोस्टली सोशल मीडिया में भाई कॉइन Somebody दिखा देना, starts सब that करे thing, ना, सब कहते हैं somebody- कॉइन दिखा दे, जो आके गिरा है हेड या टेल दिखा दे एक दफा। देखिए आप इसका मतलब एक मैं इसको छोटे उसमें समराइज करूं। आप बेसिकली सिर्फ जीतने वाली टीम को जिसने टॉस जीता है, आप कह रहे हैं कि जी वो उन्होंने चीटिंग की है चूंकि कॉइन नहीं जिता रहे। आप बेसिकली साथ में जो टीम जो ऑपोजिट टीम है उसको भी इसमें रगड़ रहे हैं कि उसका कप्तान भी मिला हो, तो सारे लोग मिले हुए तो सब चीटर हैं। सबकी इंटेग्रिटी को आप चैलेंज कर रहे हैं। किस किस्म की ये अनफॉर्चुनेट सी बात है ये बड़ी। दिस इज जस्ट रियली वो, बिकॉज़ यू चैलेंजिंग द इंटेग्रिटी ऑफ एवरी टीम एंड I एवरी। don't have a time to even waste on this subject, guys. You know what? I change the completely topic. and absolutely agree with you. Thank you. Therefore, I think we're going to take a break. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर-ए-आलम और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड दी ARY Zap app, and we were just making our dinner plans actually. I do apologize for that. जब आप आ गए थे, हम ऑन एयर हो गए थे सर, गलती हो गई थोड़ी सी। क्या बात कर रहे थे हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले? कितने बजे पहुंचना है खाने थे? नहीं, वो तो ब्रेक ही कर रहे हम ये अंपायर कॉल चले वगैरह जो की भी बात हो रही फायर थी। कॉल की बात हो रही थी till Moin Khan brought up a subject that was really uncalled for. और As you can मैच see, शुरू होने से पहले ना, जिस बॉल से मैच होना है या जिन बॉल से मैच होना है उसको पहले ना चीर के ना चेक करना उसमें कुछ है तो नहीं। नहीं, आज का देख लो, वो कप्तान जैसे मैं अगर कप्तान हूँ, फोन जेब में है, वो पिच देखने गया, उसने तस्वीर ले ली है पिच की। पैट कमिंग ने शुरू हो गए ना सारे आते। अच्छा, हाँ, पिच की तस्वीर ले रहे हैं, कल चेंज ना कर दें। जब उसमें मैच ही नहीं हुआ। या I didn't know that. Is that actually? I read. Oh my goodness me, that's so funny. That's तो हल्का सा कोई निशान लगा के आ जाते हैं। हाँ, वो कहते हैं यार ऐसे मार्कर लगा दो, चेंज ना हो जाए। होता है ना अपनी बोतल पे मार्कर लगा रहे थे। वो शुरू के दिनों में क्रिकेट जब खेलते थे तो एक ग्राउंड में बहुत सारे मैचेस होते थे, तो क्या करते थे, दो लड़के सुबह चले जाते थे, पाइन की लीला हो अपनी जाके क्लेम टू ये भी हमारे हमने करना है ऐसे। That's how it used to be. Well, it is going to be a great final. Epic final, because you've got two very, very good teams in the final, and it's going to be, I think, will be a match to be remembered for the ages, basically. Two best teams have qualified. Yeah. Simple. Do you think any team crashed out, unfortunately? कोई ऐसी टीम लगती है Crashed out? मतलब कि यानी कि ये भी हो सकती थी या होनी I चाहिए think थी। South Africa fought really well. Yeah. They fought in the semi-final as well. Unlucky. But I think बाकी deserving teams पहुंची है मेरे ख्याल में। And let me ask you this to all of you. What do you think? Will Williamson carry on, or this was it? This was his final World Cup appearance? Maybe one day World Cup appearance. मेरे को 4 साल बाद I doubt कि वो 4 साल और खेलेगा विलियमसन। उसने वो कहना है जो काउंटी में हमारे क्रिकेटर्स कहते होते थे। Please. वो मुशी ने ये लाइन बनाई है, मुश्ताक अहमद, वेरी फनी। वो कह रहे हैं कि जी वो ब्रिटिश प्लेयर या ऑस्ट्रेलियन पर उठते हैं, 80 तक उठते हैं, एंड वन डे दे से ओके, आई ओपनड अप अ विंडो, ओपनड अप अ कर्टन, आई सॉ द सन एंड आई थॉट that's it. I'm done. It's time to done my retire. job. I'm retiring. ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਬਰਦਾਰ ਤੂੰ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਖਬਰਦਾਰ ਤੂੰ ਪਰਦਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। यहाँ पे ना पर्दे वो सुबह उठ के, as you said, I think that's it. I am done. फिर कर्टन बंद कर देने, फिर दोपहर को खोल देने, no, I am back. Yeah, that's you basically. That's you. एक सेकंड, tell me once कि मैंने रिटायरमेंट ली हो। मजाक कर रहे हैं यार, तू सीरियस क्यों हो गया यार? मैं नहीं हूं, तू क्यों यार इतना सही सीरियस हो बात गया? कर देना, ऐसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਸ। तू बस कर दे, तू रहने दे, तेरे को नहीं होगा। ऐसे भी मेरा नाम ला दो, तू ढीठ है, हाँ मैं है। That's nice of you. That's what. Anyway, we're gonna. I think I'll wrap this up because we got to get to dinner and I'm hungry. The samosas and Again? the jalebis have kind of disappeared.
game for you tomorrow. ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं मैच आइडेंट. It is Australia versus India, the big final, 19th November, which is tomorrow in Ahmedabad at the Modi Stadium, 1:30 p.m. कल सुबह हम बराह रास्त आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे 11:30 बजे. 11:30 a.m. we will be here with an in-depth look at the match. That'll be the pre-match, and then of course we will be with you at the end of the day. It is our last day tomorrow, so please do join us, because it's going to be an important day, not just for the cricketing world, but also for the Pavilion. Yes. And with that, gentlemen, I think let's call it a night. Let's go and prepare ourselves nice for the meal. final. Yes. Yes. With a lot of food. Yeah, absolutely. I never say no to food, man. Shoaib Malik, thank you very much. you so Like much. always, Moin Khan, Thank you. outstanding. Thank you very much. Misbah Haq, fantastic. Thank you very much. And Wasim Akram, all Thank I you can very say is that चिचकू चिचक डेरियां दो तेरियां दो मेरियां. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ और ਜਾਣਾ. भाई मैं कल प्रॉपर है आज तो मैं एनजी वार्म अप कर रहा हूँ. And that was Misbah Haq interrupting my ending. Ladies and gentlemen, good night.